So today we are going to start the fourth session of this namology course. So kindly write down. So first of all, write down birth number, path number, lucky days and favorable date. किसी का अगर 110 बर्थ नंबर है या पाथ नंबर 1 है तो उसका जो लकी डेट है वो फर्स्ट मंथ रहेगा, फर्स्ट डेट रहेगी 10th, 19th and 28th will be a lucky date. And the favorable date, लकी डेट उसके आगे डेट्स लिख लिए, नीचे फेवरेबल डेट लिखिए. फेवरेबल डेट्स विल बी 4, 13, 22, 31. देखिए आपके अभी वो जो प्रोस्पेक्ट्स थे ना, अभी आप जो सोचने का नजरिया था आपका अभी एकदम से चेंज होता जाएगा. चीज चीज में जिस तरह से आप लोगों ने एक पहले मोमेंटम बनाया था आपको लगा इस तरह से चलेगी चीज, लेकिन यहाँ देखिए चीजें चेंज होती जा रही है ना. इसीलिए ये वो वाला कोर्स नहीं है जिसमें कि डबल ये नेम आ गया या डबल नंबर आ गया उसका ये इम्पैक्ट होगा. ई यू वाई वाले बहुत हंसमुख होते हैं, फलाने वाले वो बहुत ऐसे होते हैं. उस चीज से बोल के हम लोगों को खुश नहीं कर सकते हैं. वो एक बात है कि एक बार को कोई खुश हो जाएगा, लेकिन जब उसे कोई रेमेडी नहीं मिली, उसका कोई उसे रिजल्ट नहीं मिला, तो उसका कोई यूज नहीं है आई थिंक. ठीक है. 2011 and second month of the year. Okay, lucky dates are 2, 20, 11 and second month of the year, and favorable dates are 7, 16, 25. Lucky color will be white. Lucky dates will be 3, 12, 21, 30th and third month of the year. And so similarly, the favorable dates will be 9, 18 and 27. Lucky color orange and rose color. With the number 4, the lucky dates will be 4, 13 and 31st and fourth month of the year. And similarly, the favorable dates will be 1, 10, 19 and 28. And the lucky color will be golden and sky blue. And number 5, the lucky date will be 5, 14 and 23 and fifth month of the year. And the favorable dates will be 9 and 27. And the lucky color will be sky blue, golden and gray. Number 6, lucky date will be 6, 15, 24. And the favorable dates will be 9, 18, 27 and 6th month of the year. And the lucky date for the number 7 will be 7, 25 and 16. And if we talk about favorable date, so there will be 1, 10, 19, 27 and 7th month of the year. And now number 8, lucky date will be 1, 19 and 28. And the favorable date will be 4th, 13th, 22, 31, 31st and 8th month of the year. Lucky color golden and sky blue. The lucky stone will be
dark blue sapphire. And now comes in number 9. Lucky date will be lucky date 9, 18, 27. And favorable dates will be 1, 19, and 28th, and 9th month of the year. Whereas lucky color will be red, dark blue, and light green. Light cream. Light green. Green. Yes, yes, green. And the lucky stone will be coral. तो नंबर 10 का वही आएगा जो नंबर 1 का आया है, ठीक है, क्योंकि नंबर 1 में वही नंबर 10 आया है, तो सिमिलर चीजें ही आएगी। और नंबर 11 के लिए अगर हम देखते हैं, किसी का 2. बर्थ या पाथ नंबर आता है, तो उसके लिए सेकंड आएगा 11th के लिए। और जैसा थर्ड का है, नंबर 3 का है, वैसा आएगा 12 के लिए, ठीक है। For 11th and 12th, we will consider the same rules of the second and third. Okay. So one can use the lucky date or favorable dates for initiating any new work. किसी भी अच्छे काम को करने के लिए से पहले ये लकी और फेवरेबल डेट्स और कलर्स को इंसान देख सकता है। और अगर उसके स्टोन्स की बात आती है, तो वो कोई अगर स्टोन बताया जाता है, तो ये देख सकता है कि उसका फेवरेबल स्टोन कौन सा रहेगा। अब बाकी चीजें ऐसा है कि बाकी सब लोग दूसरी दूसरी जगह से क्लासेस लगा रहे हैं, तो अभी बहुत चीजें ऐसे बता के फायदा कोई नहीं है ना, तो वो समझ पाएंगे या कोई उनका क्वेरी होगी तो वो बाद में उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। प्रोडिक्शंस मंथ डेट वाइज, द मंथ इज फर्स्ट and the date is first. So people born in this month, if their Lagna Lord attains a strength, the benefic planet in Lagna or in 159, 11 or in own sign get exalted. और अगर वो कहीं बाधक हाउस में है या तिथि शून्य में है, तो वो 50% बेनिफिक कंसीडर किया जाएगा। तो सच planet will give troubles to their native, but at same time the native will come out of the troubles also, because if that Lagna Lord is having a strength or is in good houses, but slight a bit if it's in Tithi Shunya or something, so it will give the troubles also, but person will get the way out to come out from the all the troubles, get the rid of it. So अगर इसकी जनरल बात करें प्रोडिक्शन की, तो इस तरह का नेटिव जो है अच्छा नेम और फेम कमाता है, ठीक है, किसी भी फील्ड में उसका करियर अच्छा रहता है, और खासकर पॉलिटिक्स हो गया, मेडिसिन हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गया, या इस तरह की फील्ड में उसका एक अच्छा नाम बनता है, उसका एक अच्छा करियर बन जाता है, ठीक है। अगर वो लगना लॉर्ड अफ्लिक्टेड है किसी भी तरह से, जो चीज मैंने बताई है या उसके अलावा जो भी चीजें हैं, या तिथि शून्य में है, या फिर और ज्यादा अफ्लिक्टेड कैसे होगा, अगर वो 6, 8, 12 में होगा, या 6, 8, 12 के लॉर्ड के साथ होगा, तो वो और ज्यादा अफ्लिक्टेड होगा। किसी भी अशुभ ग्रह के साथ होगा, 6, 8, 12 में होगा, या 6, 8, 12 के लॉर्ड के साथ होगा, तो वो प्रॉब्लमेटिक होगा। तो ऐसे पर्सन को जो है पुत्र दोष की संभावना रहेगी। लाइफ में एक बार अपना धर्म परिवर्तन कर सकता है, या जो रिलीजियस बिलीव्स हैं, बिलीव्स मीन कोई भी, मतलब धर्म से संबंधित किसी भी उसकी एक आस्था बढ़ जाएगी वैसे ही।
मतलब वो हम्म, धर्म कह लो या संप्रदाय कह लो, किसी भी ऐसे संप्रदाय की तरफ को उसका आकर्षण एक बार लाइफ में हो जाएगा, वो उस तरफ को जाएगा जी। ठीक है। और ठीक। हेड रिलेटेड प्रॉब्लम्स ऐसे पर्सन को रहने की काफी ज्यादा संभावना है, और वो पेरेंट्स से भी सेपरेशन की सेपरेट रहेगा मोस्ट ऑफ द टाइम। दैट नेटिव वुड बी लिविंग अ सेपरेट फ्रॉम द पेरेंट्स और फार फ्रॉम द मतलब पेरेंट्स। सन की वो कुछ कुछ नेचर आ गई इसमें, है ना? हाँ, देखिए वो चीजें ना, मतलब आस्ता आस्ता वही चीजें आएंगी, लेकिन इसमें अब एड ऑन होता जा रहा है चीजें कि क्या क्या चीज से होगा, किस कारण से होगा। ये आपको फर्स्ट तारीख का बताया है, फर्स्ट मंथ का बताया है। ओके। सो सिमिलरली अभी और भी डेट्स और भी मंथ्स हैं। अगर आपको सब, मतलब आपको मैक्सिमम का चाहिए है तो आप लोग नोट कर सकते हैं, या आप एक का लेकर या उस तरह के नंबर्स का ऐड करके आपको लगता है कि वो आप तो आगे सर बाकी लो, पर मेरे अकॉर्डिंग दैट मीन्स कि सेकंड मंथ का सेकंड नंबर के जैसा ही नेचर होगा, है ना? हाँ। इमोशनल और ट्रेवल से फायदा जो आपने पीछे लिखाया है, आई थिंक सर ओके ही है। ठीक है सर। हाँ सर, यू कैन कंटिन्यू। नेमोलॉजी ले रहे हैं तो इसमें हम जो बर्थ टाइम लेते हैं वो 12 to 12 होगा। अगेन एंड अगेन आई एम ठीक। रिपीटिंग ऑल दिस थिंग्स सो दैट कि दिस थिंग्स शुड नॉट स्लिप फ्रॉम योर माइंड, एंड बेटर दैट फिक्स इन योर माइंड बिफोर प्रिडिक्टिंग एनीथिंग। ठीक है, गिविंग प्रिडिक्शन टू एनीवन और मेकिंग एनी थॉट फॉर एनी पर्सन। सो these things should be very much clear in your mind that the हम्म। birth date time is calculated from 12 to 12 only. हम्म। Okay. Last date changes after 12 o'clock. All right. All ठीक। right. And second thing is कि जब भी नेम चेंज की बात आती है तो 25 साल की उम्र से पहले तक जो नेम चेंज किए गए हैं उनके मोस्टली जो है बेटर रिजल्ट्स है, बजाय कि उसके बाद जो हम करेंगे वो। इन जनरल भी हम लोग समझ सकते हैं कि अगर किसी इंसान की एज 30 से ऊपर जा रही है, 25 से ऊपर जा रही है, तो उसकी बहुत सी हैबिट्स जो है वो पक चुकी होती है। उसके जो नेम है या निक नेम कोई बुलाता है, वो निक नेम्स पक जाते हैं, वो बाद में चेंज नहीं होते। हाँ, जब कोई स्टूडेंट लाइफ में है तो उनके नेम्स में चेंज आ सकता है। ठीक है, उससे उस तरह से देखा जा सकता है। तो इसलिए वो ज्यादा इजी रहता है, और वो नेम की, क्योंकि बार बार जो कॉल करेंगे उसकी वाइब्रेशंस का मैटर करेगा। अब हम सपोज एक पत्थर की शिला लाकर उसको कहते हैं कि ये भगवान है, भगवान है, तो वो सभी लोग उससे भगवान पूछेंगे ना, तो उसे हमने नाम क्या दिया? वो पत्थर ना देकर भगवान दिया नाम उसे, वो देवी देवता का नाम दिया है, और उसमें वही स्वरूप दिखेगा। तो सिमिलरली ही इंसान को जो हम नाम देंगे उसके अंदर उसका वही स्वरूप दिखेगा, वही चीज उसकी आएगी। तो इसलिए आप लोगों को ये चीज बहुत ज्यादा गौर करने लायक है कि जो हम किसी का नाम दे रहे हैं वो किस तरह से दें। और 25 साल की एज के बाद जो हम नाम देते हैं उसका जो है प्रोसेस थोड़ा अलग रहता है, और उसकी जो है रिजल्ट्स थोड़े से लेसर मिलते हैं, थोड़ा लंबा समय लगता है। क्योंकि अब 40 या 45 एज के बाद कोई अगर नेम चेंज कर रहा है तो वो क्या काम करेगा? या तो वो बिजनेस करेगा या उसकी हेल्थ इश्यूज होंगी, उन पे ही उनका इफेक्ट होगा। वो ठीक है, वो चल जाएगा। बट अगर कोई और कहता है कि मुझे नौकरी करनी है, नौकरी ही नहीं लग रही, तो 40-45 के बाद उसकी नौकरी नहीं लगेगी ना, तो उसे वो रिजल्ट तो नहीं मिले। हो सकता था 40 ईयर की एज तक उसने जॉब किया और उसके बाद सिमिलरली किसी तरह से छोड़ दिया या छोड़ना पड़ा। अब उसके पास जॉब नहीं है, अब वो चाहता है कि मुझे जॉब करना है। तो अब उसका अगर नेम चेंज भी करेंगे तो जरूरी नहीं है कि उसे वो जॉब मिले या वैसी एक इक्विवेलेंट रैंक वाला एक जॉब उसे मिले। ठीक है, उसके हेल्थ इश्यूज या उसकी और फैमिली लाइफ या उन चीजों में नेम चेंज का इफेक्ट आ सकता है। तो ये आप लोगों को बड़े ध्यान से रखना है ये चीजें, कि आप लोग किसी को कमिट करते हैं तो आप लोगों को भी मालूम हो कि आप क्या बोल रहे हैं, किसे क्या चीज आप कमिट कर रहे हैं। कि अगर नेम चेंज होता है, कोई कहता है कि हाँ मेरा जो है 40 की एज हो चुकी है, 45 हो चुकी है, अब नेम चेंज से कुछ होगा, आप लोग बोले हाँ हाँ हो जाएगा, और वो बोले मेरा जॉब भी लग जाएगा,
तो जॉब नहीं लगेगा। वो आपको कहना होगा कि ये चीजें अब जो है जॉब के लिए नहीं होगा। हाँ, तुम्हारा कोई ऐसा अपना एंटरप्रेन्योरशिप हो सकती है, कोई ऐसा काम हो सकता है, कोई अपना इस तरह का बिजनेस शुरू हो सकता है अच्छा, या कोई अपनी ही कोई भी चीज, आपकी जो स्किल है उससे रिलेटेड आप कोई काम भी कर सकते हैं, वो आपके चल सकता है। जो फैमिली इश्यूज हैं वो हो सकते हैं ठीक। उनके आगे बच्चों को जो प्रॉब्लम्स आ रही है उनके नाम के कारण, उसके नेम वाइब्रेशन से, वो बच्चों में आगे जो है फर्क पड़ जाएगा, फैमिली में फर्क पड़ जाएगा, फैमिली के वेल्थ में फर्क पड़ जाएगा। ठीक है। और अगर अननेसेसरी किसी एक्सपेंडिचर नहीं हो रहे हैं तो साफ सी बात है कि उसका वेल्थ भी बच रहा है ना। तो ये चीजें हैं। तो इसलिए आप लोगों को ये चीज बहुत ध्यान से रखनी है कि किसी को भी आप कहते हैं, कमिट करते हैं या अपने आप में भी सोचते हैं, तो आपको ये पूरी तरह से अवेयरनेस होनी चाहिए कि हम नेम चेंज से क्या चीजें ला सकते हैं। हाँ, नेम्स के साथ आप ये असेस कर सकते हैं कि इस पर्सन को प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, वो आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को पता लग जाएगा। जैसे अब मैंने आपको चीजें बताई है, बादकेश या बादका में या तिथि शून्य या वो चीजें, तो वो आपको पता लग जाएगा, है ना। उन चीजों को आप देख के कर सकते हैं कि इसको जो प्रॉब्लम आ रही है वो क्यों आ रही है। किसी की अगर मैरिज नहीं हुई है, पंडित ने कह दिया कि मैरिज हो जाएगी, लेकिन अगर उसका वो लगन लॉर्ड बाधक स्थान में बैठा है या बाधकेश के साथ बैठा है या 6 8 12 में बैठा है, एफ्लिक्टेड है किसी तरह से या तिथि शून्य में पड़ रहा है, तो उसकी मैरिज नहीं हुई। ठीक है। वैसे ही प्रोजिनी का है, संतान का है, वैसे ही किसी और चीजों का है। तो ये सिमिलर चीजें उस तरह से भी देखी जाएंगी। ठीक है। तो ये आपको हमने ये बताया है। अब इसके साथ हम इसमें वो इसको और ज्यादा वो नहीं खींचते हैं। अ, अब इसको अब मैं, ओके, आपको वैसे मालूम है कि स्ट्रॉन्ग प्लैनेट क्या होता है? प्लैनेट स्ट्रॉन्ग कैसे होगा, क्या होगा? हाँ सर मालूम है। ओके। कोई स्वराशि का हो, एग्जॉल्टेड हो। यस। हम्म, और सर ट्राइन में हो और केंद्रास में हो और पंक्चुअल बेनिफिक हो तो भी वो स्ट्रांग है। 159 में। हाँ। जी। जी। और सबसे बड़ी बात जो है, अगर उसे बेनिफिक प्लैनेट्स, अब बेनिफिक प्लैनेट्स कौन से आगे सबसे पहले तो जुपिटर आता है। ठीक है। तो बेनिफिक प्लैनेट जुपिटर हो गया, या आपका वीनस हो गया, या आपका मर्क्यूरी हो गया नॉन अफ्लिक्टेड, वो अगर देख रहे हैं तो उसकी जो है एक बेनिफिक क्वालिटीज बढ़ जाएंगी, वो और ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। और अगर उसे जुपिटर नहीं देख रहा है, मेजरली आप लोगों को जुपिटर देखना है। जुपिटर इज द मेन बेनिफिक प्लेनेट, क्योंकि वो गुरु है। उसकी अगर कहीं दृष्टि पड़ रही है किसी चीज पर, तो उसके जो मैलिफिक इफेक्ट्स हैं वो कम हो जाएंगे, और इंसान को उसका कुछ ना कुछ अच्छा एक रिजल्ट मिलेगा मिलेगा। ठीक है। और अगर वो ऐसा नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, या जुपिटर उसे नहीं देख रहा है, तो उसे हम 50% जो है बेनिफिक कंसिडर करेंगे सिर्फ, उससे ज्यादा नहीं करेंगे। तो सिमिलरली चार्ट में भी ऐसा ही रहता है। अगर एस्ट्रोलॉजी में देखें तो जितनी परसेंट उसकी परसेंटेज है स्ट्रेंथ की, उस परसेंटेज के अकॉर्डिंगली ही प्लैनेट अपना रिजल्ट देगा, और उतना ही इंसान को उसका जो है बेनिफिट मिलेगा लाइफ में, या उसी तरह से चीजें मिलेंगी। कोई चीज अगर मिल रही है तो वो ज्यादा मात्रा में ना मिलकर कम मात्रा में मिल रही है, क्योंकि उसकी परसेंटेज जो है स्ट्रेंथ की कम है, इसलिए उसे ऐसा मिल रहा है। और अगर उसे प्रॉब्लम दिखता था कि बहुत बड़ी आने वाली है, लेकिन सडनली कुछ ऐसा हो गया, उसे बेनिफिट मिल गया, रिलीफ मिल गया, सो दैट मीन्स कि कोई ना कोई बेनिफिट प्लैनेट की एस्पेक्ट उसके ऊपर है, जिसके कारण उसे जो है वो प्रॉब्लम बड़ी नहीं आई। नहीं तो शायद प्रॉब्लम बड़ी आ सकती थी। अब इंसान रोड पे चला हुआ है, वो किसी साइकिल से टकरा गया और साइकिल से हिट होकर थोड़ी सी चोट लगी, तो वो प्रॉब्लम शायद बड़ी आ रही थी। किसी कार से या बाइक से या ट्रक से भी टकरा सकता था इंसान, लेकिन उसका जो प्लैनेट है जिसके कारण उसे ये हिट हुआ, ये प्रॉब्लम आई, उसके ऊपर कहीं ना कहीं कोई ना कोई बेनिफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट पड़ रहा था उस समय।
जिसने बचा लिया, जैसे कहते हैं कि हमें किसी की दुआओं ने बचा लिया, तो वो दुआएं, वो गुरु है, वो गुरु बृहस्पति है, जिसके एस्पेक्ट से, जिसके बेनिफिक एस्पेक्ट से इंसान बच जाता है। इसमें चीजें वैसे ही है जैसे एस्ट्रोलॉजिकली है, लेकिन कुछ चीजें एस्ट्रोलॉजिकली की तरह से ना देख के वो अलग तरह से देखा जाएगा। इसमें हम अगर जुपिटर खराब भी बैठा है तो भी हम उसे 50% बेटर कंसिडर करेंगे। हम जुपिटर को खराब कंसिडर कर ही नहीं सकते हैं इसमें। सिर्फ उसकी परसेंटेज का फर्क पड़ जाएगा कि वो 75% है, 50% है, या 100% है, या टोटली 25% है। बट 25% तक जुपिटर जाता नहीं है। जुपिटर को हम 50% तक ही लेते हैं। वो भी इसलिए कि अगर वो डेबिलिटेशन में है, या किसी के बैड एस्पेक्ट में है, या किसी के बैड कंजंक्शन में है, या अपने किसी मतलब उसके जो क्या कहते हैं, जहां वो बैठा है, वो उसके जो लॉर्ड हैं वो कहीं गलत जगह पर बैठे हैं, ठीक है, या वो राहु केतु के साथ है, राहु केतु के एस्पेक्ट में है, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। नेक्स्ट जो इसके हमारे पास चैप्टर का कंटिन्यूशन है, वो उस पर हम ज्वाइन करते हैं। ठीक है, इसको हम सेव कर लेते हैं।